Hello students, how are you all? My name is Priya Seth. Today I am going to teach you Environmental Studies of Class 4, Chapter 1, Going to School. Student, in this chapter we are going to study how do you go to school? आप स्कूल कैसे जाते हो? How do children go to school in different parts of India? Different parts of India में means different states में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? How one state is different from another? In this, we see that how one state is different from another in terms of their geographical conditions. Next, we will study what is bamboo bridge. Bamboo bridge क्या होता है? आसाम में बच्चे bamboo bridge से स्कूल जाते हैं. Bamboo bridge को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. What is trolley? Trolley क्या होती है? ये जानेंगे. What is पुले? पुले क्या होता है? What is cement bridge? Cement bridge क्या होती है? What is camel cart and what is bullock cart? Let's move forward, student. In this slide, you can see the map of India. Students, there are 28 states in India, and each state is different from one another in terms of their geographical conditions. Geographical conditions means in some state there is a lot of rainfall. In some state, there is no rainfall at all, and in some state, there is a heavy snowfall. So, each state is different from another in terms of their geographical conditions. Let's take some example. Suppose in Assam, students in Assam, there is a heavy rainfall, and in Rajasthan, there is low rainfall or no rainfall at all. So Rajasthan is called as desert area. And in Ladakh, there is a heavy snowfall. In these states, you can see that these states are near the seashore. So there is a lot of water at these states. Now student, let's move forward and let us meet some children and see how they reach to school. Student, first of all, answer my question that how you go to school. You go to school by bus, by motorcycle, by car, or by road. Now, student, we move to Assam and talk to children in Assam and find out that how they go to school. In Assam, it rains heavily. There is a knee-high water everywhere. So children use bamboo bridge to go to school. They hold book in one hand and bamboo rope with other and cross the bridge. ब्रिज को क्रॉस करने के लिए बच्चे क्या करते हैं? एक हाथ में बुक्स को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से बैम्बू को पकड़ते हैं और ब्रिज को क्रॉस करते हैं. बैम्बू ब्रिज किससे बना होता है? Bamboo bridge is made with bamboo and rope. So now move forward. Student, do you know what is bamboo? Bamboo is a tall tropical plant with hollow and hard stems. क्या होता है ये? Stems जो होती हैं ये hollow होती हैं. Hollow means children कि अगर आप इनको काटोगे तो आप देखोगे कि अंदर ये खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है. एंड हार्ड स्टेम्स, ये हार्ड होती हैं, तभी तो इन पे ब्रिज बन पाता है. बैम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड. Now student, we move forward. In this slide we are going to do an activity. Children, let's imagine how you will go to school if lot of water accumulates on the way to your school. अगर बहुत सारा पानी रास्ते में भर जाता है आपके घर से और स्कूल जाने के बीच में, तो आप स्कूल कैसे जाओगे? हम क्या करेंगे बच्चों स्कूल जाने के लिए?
हम रास्ता बनाएंगे। वी विल build a way and walk on it to reach to the school। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले लेट अस कलेक्ट सम ब्रिक्स। इसमें हम कुछ ब्रिक्स को कलेक्ट करेंगे। ये आप इमेज में देख रहे हो बच्चों, ये ब्रिक है। नाउ सेकेंड, lay them on the ground in line with some gap in between। अब हम इनको लाइन में लगाएंगे, कुछ कुछ दूरी पे इसको रखेंगे। Now next, now walk on the brick to reach the other side, first by wearing your shoes। Now remove your shoes and walk barefoot। पहले हम जूता पहन के इस पे चलेंगे, क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम बिना जूते के इस पे चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या इजी पड़ता है। अब आप हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। बच्चों, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? क्या ये आसान था? वॉज इट इजी? यस। डिड यू फॉल? नो। वॉट वॉट वॉज easier, वॉकिंग विथ barefoot और wearing shoes? क्या आसान था बच्चों? जूते पहन के क्रॉस करना या जूते उतार के क्रॉस करना? जूते उतार के क्रॉस करना ज़्यादा आसान रहा होगा, क्योंकि उससे हमारी अच्छी ग्रिप बन रही थी, अच्छी पकड़ बन रही थी, है ना बच्चों? Now we are going to study what is bridge। ब्रिज क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। ब्रिज इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है और पीस ऑफ लैंड दैट इज बिल्ड टू जॉइन टू प्लेसेस, जो कि दो जगह को जोड़ता है। ये आप देख रहे हो बच्चों इमेज में, ये एक ब्रिज है जो बीच में नदी जा रही है। तो इस ब्रिज के वजह से ये एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ रहा है, ताकि हम एक साइड से दूसरे साइड आ सकें। Now student, we move to Ladakh and talk to student in Ladakh and find out how the student in Ladakh go to school। बच्चों, आपको पता है लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कश्मीर रीजन। ये कश्मीर का एक पार्ट है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ हाई प्लेन्स एंड डीप वैली। ये हाई प्लेन्स होते हैं यहाँ पे और डीप वैली होती है। नेक्स्ट, द ट्रॉली। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली के हेल्प से, मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, स्कूल जाते हैं। इन लद्दाख ट्रॉली इज यूज टू क्रॉस द वाइड एंड डीप रिवर एंड गो टू द स्कूल। ट्रॉली की मदद से बच्चे स्कूल जाते हैं। द ट्रॉली इज मेड अप ऑफ वुड। ट्रॉली किससे बनी होती है? लकड़ी से। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप across the river on both the side। It is tied tightly with strong trees or rock। स्ट्रॉन्ग ट्री या रॉक के हेल्प से जो रोप होती है उसको बांधा जाता है, और इसमें एक पुले होती है जिसकी हेल्प से ट्रॉली मूव करती है। पुले के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इस ट्रॉली में बच्चों 4 to 5 बच्चे एक बार में बैठ सकते हैं। व्हाट इज ट्रॉली? अब बच्चों इसमें हम जानेंगे कि ट्रॉली क्या होती है। ट्रॉली एक वुडन ओपन बॉक्स है। आप इस इमेज में देख सकते हो बच्चों, ट्रॉली एक वुडन बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है ना बच्चों? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज पुले। पुले क्या होता है? पुले इज अ वुडन और मेटालिक मशीन। एक पुले क्या है? एक वुडन और मेटालिक मशीन है। आप इस इमेज में देख सकते हो बच्चों, ये जो मेटल का कुछ आपको दिख रहा है, इसको हम पुले बोलते हैं। ये क्या होता है? या तो ये वुड का होता है या मेटल का बना होता है।
इस इमेज में ये मेटल का बना हुआ है. It uses a wheel or rope with the help of which we pull the load. क्या करते हैं हम? ये एक व्हील होता है जिस पे एक रस्सी बंधी होती है जिसके हेल्प से हम वेट को, लोड को खींचते हैं. Now, student, we will do activity. Student, here you can see the two image. Can you tell me the difference? In first picture, you can see that pulley is set here. Here is the pulley with the help of which a boy is pulling out the bucket. And in second picture, you can see rope is used to pull out the water from the well. Here you can see there is no pulley. So, a student, which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? क्या आसान होगा? आप सोच के बताओ. Pulley will be easier. By using pulley, we can lift the weight easily without much effort. Student, where all do we see the use of pulley? अब आपको बताना है कि आपने कहाँ कहाँ देखा है इस पुले की यूज को. आपने इसे कंस्ट्रक्शन वर्क में देखा होगा जहाँ पे हैवी लोड्स को उठाने के लिए पुले की हेल्प से उठाया जाता है. आपने जिप लाइन एक्टिविटी भी देखी होगी जहाँ पे हम एक एक्टिविटी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फॉर फन. और थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल. हम पानी को वेल से निकालने के लिए पुले का यूज कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस व्हाट इज सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज क्या होता है? सीमेंट ब्रिज इज यूज टू क्रॉस सम वाटर बॉडीज. कुछ वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए सीमेंट ब्रिज का यूज हम करते हैं. सीमेंट ब्रिज है जो किससे बना होता है? इज मेड अप ऑफ सीमेंट, bricks and iron rods are used to make cement bridge. है ना बच्चों? इस इमेज में आप देख रहे हो ये जो ब्रिज है ये सीमेंट, आयरन रॉड और ब्रिक से बना हुआ है. Now we will move to next slide. In this, we are going to study the difference between bamboo bridge and cement bridge. सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बैम्बू ब्रिज इज मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रोप. और सीमेंट ब्रिज क्या होता है? सीमेंट ब्रिज इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड. बैम्बू ब्रिज इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सीमेंट ब्रिज. ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बैम्बू ब्रिज. इसको हमें टाइम टाइम पे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. और जो सीमेंट ब्रिज होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये बहुत सालों तक चलता है. इन बैम्बू ब्रिज इट कैन नॉट बियर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स. हम बैम्बू ब्रिज पे हैवी व्हीकल्स को नहीं ले जा सकते. सीमेंट ब्रिज इट कैन बियर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स. यहाँ पे हम व्हीकल्स को ले जा सकते हैं. Vallam. Now student, we move to Kerala and find out how student go to school in Kerala. Vallam is a Malayalam word which means wooden boat. Students in Kerala, students go to school with the help of Vallam. Vallam क्या है बच्चों? एक wooden boat है. In some part of Kerala, Vallam is used to reach to the
School. Now, students, let's answer some questions. Have you seen any other kind of boats? Yes, I have seen many kind of boats. Some of them are listed below. First one is rowboat. rowboat क्या होता है बच्चों? एक वुडन बोट होती है जिसमें एक आदमी होता है जो कि बोट को चप्पू की मदद से चला रहा होता है। उस चप्पू को हम रो बोलते हैं। तो ये रो बोट है। मोटर बोट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मोटर बोट। मोटर बोट क्या होता है बच्चों? इसमें एक मोटर फिट होती है जो कि स्टार्ट करने पे ये घूमने लगती है और ये चलने लगता है, और इसे हम बोलते हैं मोटर बोट। इस बोट में बच्चों हमें चप्पू की कोई हेल्प नहीं लेनी होती। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट में बच्चों एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है हाउस की तरह। जो भी फैसिलिटीज हमारे हाउस में होती हैं इसमें भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो इसको हम हाउस बोट बोलते हैं। Now student, we move to Rajasthan and find out how the children go to school in Rajasthan. In Rajasthan, it is very hot in the day. It is a desert area surrounded by sand. राजस्थान में बच्चों बहुत गर्मी होती है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और यहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है और सैंड ही सैंड है। ये डेजर्ट एरिया है एक, क्योंकि यहाँ पानी कम होता है। सो यहाँ पे बच्चों कैमल कार्ट का यूज होता है टू रीच टू द स्कूल। बच्चे कैमल कार्ट पे बैठते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये एक कैमल कार्ट है जिसपे बच्चे बैठे हुए हैं और ये स्कूल जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज कैमल कार्ट? बच्चों कैमल कार्ट क्या होता है? कैमल कार्ट एक व्हीकल है जो कि कैमल के द्वारा पुल किया जाता है। It carry a cart which is open and made up of wood carrying 2 or 4 vehicle। ये एक कार्ट है। ये आप देख सकते हो, ये एक कार्ट मतलब क्या होता है बच्चों? गाड़ी। ये एक गाड़ी है विच इज ओपन, जो कि यहाँ से खुला हुआ है और ये वुड का बना हुआ है पूरा। एंड कैरिंग 2 or 4 व्हील। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इसके 2 पहिए हैं। इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग लोड। ये लोड्स को ले जाने के लिए होता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। Why camel is used in desert and not other animal? हम कैमल को ही क्यों डेजर्ट में यूज करते हैं, कोई और एनिमल क्यों नहीं यूज करते? बच्चों कैमल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कैमल डज नॉट ड्रिंक मच वाटर। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 7 मंथ। डेजर्ट एरिया में बच्चों इतना पानी नहीं होता है, और कैमल हमारा जो है वो इतना पानी नहीं पीता है, और ये 7 मंथ तक बिना पानी के रह सकता है, इसलिए हम कैमल का यूज करते हैं। और इनकी जो वाइड फीट होती हैं, जो इनकी फीट होती है ये बहुत वाइड होती है, और ये रेत में अंदर नहीं धंसती, इसलिए हम कैमल का यूज करते हैं। नाउ बच्चों, अब हम जानेंगे बुलक कार्ट क्या होता है। बुलक कार्ट जो है बच्चों यूज बाय विलेजर्स इन द प्लेन्स टू गो टू द स्कूल। ये प्लेन्स में यूज होते हैं, उस एरिया में जो प्लेन एरिया है जहाँ पे डीप वैली नहीं है। अब a bullock cart is a two-wheeled or four-wheeled vehicle। ये 2 व्हील का होता है, 2 पहिए होते हैं या फिर 4 पहिए होते हैं। इट रन्स ऑन द फील्ड ऑफ प्लेन्स। ये प्लेन्स पे
चलते हैं। अब प्लेन्स क्या होता है बच्चों? व्हाट इज प्लेन्स? प्लेन्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड ऑन अर्थ। जो लैंड पर एकदम फ्लैट एरिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये एकदम प्लेन है। यहाँ पे ना तो कोई अप्स एंड डाउन्स है ना, ना यहाँ पे कोई डीप वैली है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन्स। लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस। अब आप कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स दो। डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव? क्या आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बुलक कार्ट है? यस। डू इट हैव रूफ? यस, सम ऑफ देम हैड। कुछ पे रूफ होते हैं और कुछ पे नहीं होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो ये रूफ है और कुछ जो होते हैं वो ओपन होते हैं। What kind of wheels do they had? इनके व्हील्स कैसे हैं बच्चों? वुड के बने हुए हैं। They are wooden wheels. Now students, we will discuss about जुगाड़ व्हीकल। जुगाड़ व्हीकल क्या होता है बच्चों और ये कहाँ पे यूज होता है? जुगाड़ is a vehicle used in Gujarat to reach to the school in less time. ये व्हीकल गुजरात में यूज होता है स्कूल जाने के लिए ताकि हम कम समय में स्कूल पहुंच पाए। Front of this vehicle look like a motorcycle and carriage at back is made up of plank of wood. इसका जो फ्रंट होता है ये एक मोटरसाइकिल की तरह दिखता है और इसके जो बैक में कैरेज होता है वो लकड़ी का बना होता है। और ये कैसे आवाज करता है बच्चों? ये फुट 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 की तरह आवाज करता है जब ये चलता है। Now, students, let's answer some questions. Why it is called as जुगाड़? इसे हम जुगाड़ क्यों बोलते हैं? It is made up of waste of materials of old bike parts and wooden plank. ये जो waste materials होते हैं old bike की उससे और जो wooden plank है उससे बनता है। Here, limited available resources are used to make it. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज जुगाड़। हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उसे यूज करके हम इसको बनाते हैं, इसलिए हम इसे जुगाड़ बोलते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में ऐसा कोई व्हीकल है? नो, देयर इज नो सच व्हीकल इन आवर एरिया। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? यस, हम इस पे राइड करना पसंद करेंगे क्योंकि ये कुछ नया है। तो इट विल बी अ ग्रेट फन, हमें मजा आएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बाईसाइकिल। इन मेनी विलेजेस गर्ल्स वे नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज इट इज टू फार। कुछ विलेजेस में क्या होता था, लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था क्योंकि ये उनके घर से बहुत दूर था। तो बाईसाइकिल के आने के बाद क्या हुआ कि लड़की कुछ लड़कियों ने ग्रुप बनाया 7 to 8 का और वे ग्रुप में बाईसाइकिल पे स्कूल जाने लगी। सो दिस इज कॉल्ड बाईसाइकिल। लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस। कैन यू राइड अ बाईसाइकिल? यस, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल। हु taught you to ride? My father taught me. How many children come on bicycle to your school? मेरे स्कूल में तो 200 बच्चे थे जो कि बाईसाइकिल से स्कूल पे आते थे। अब बच्चों आपको बताना है आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि बाईसाइकिल पे स्कूल आते हैं। Now student, we will move to Uttarakhand, the rocky path. In mountains, paths are
रॉकी एंड अनइवन। यहाँ पे क्या होते हैं, जो पाथ होते हैं, जो रास्ता होता है वो बहुत रॉकी होता है, बहुत सारे रॉक्स होते हैं यहाँ पे, पत्थर होते हैं और ये अनइवन होते हैं। सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय वॉकिंग थ्रू दीज रॉकी पाथ। तो इन रॉकी पाथ से होके चिल्ड्रन को स्कूल जाना पड़ता है। तो ये हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम ऐसे एरिया में नहीं रहते, हम प्लेन्स पे रहते हैं ना बच्चों। लेकिन जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि वो रोज इसी बात पे चल के स्कूल जाते हैं। तो वे इजली ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनके लिए कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। नाउ स्टूडेंट वी मूव टू नॉर्दर्न हिल्स। नॉर्दर्न हिल्स में बच्चों चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय वॉकिंग माइल्स ऑन द स्नो बाय होल्डिंग हैंड्स। वहाँ पे बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, वो स्नो पे वॉक करके और हाथ पकड़ के चलते हुए स्कूल जाते हैं। देयर इज अ हैवी स्नोफॉल इन दिस एरिया। वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है। मूविंग ऑन द स्नो। अब बच्चों आप स्नो पे कैसे जाओगे और क्या क्या प्रिकॉशन लोगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्नो पे कैसे चलेंगे, चिल्ड्रन होल्ड हैंड एंड वॉक केयरफुली। हम हाथ पकड़ेंगे और केयरफुली चलेंगे, क्योंकि if the snow will be soft, their feet sink into the snow। अगर स्नो सॉफ्ट हुआ तो हमारा पैर स्नो में अंदर चला जाएगा, धस जाएगा। आप फर्स्ट पिक में देख सकते हो कि इस बच्चे का पैर स्नो के अंदर चला गया है, क्योंकि स्नो बहुत सॉफ्ट है। नाउ व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, अगर स्नो जमा हुआ है, इस पिक में स्नो क्या है, जमा हुआ है। दे में स्लिप एंड फॉल, आप स्लिप हो सकते हो और गिर सकते हो। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, ये बच्चा स्नो पे स्लिप होके गिर गया है। नाउ स्टूडेंट वी मूव टू some parts of jungle in many parts of India like Jharkhand, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, etc. चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग द थिक फॉरेस्ट। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, एक घने जंगल को पार करके। कुछ जगहों पे तो एट सम प्लेसेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। इतना घना जंगल होता है कि सनलाइट भी पास नहीं होती है। इट इज वेरी साइलेंट, वन कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ बर्ड एंड अदर क्रिएचर। इतना शांति होता है कि हम सिर्फ बर्ड्स के साउंड्स को और जो अदर क्रिएचर्स हैं उनके साउंड्स को सुन सकते हैं, जो कि हम अदर एरिया में नहीं सुन सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, please do like and subscribe for more videos. Thank you.